Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Botanica. So previously we have discussed about how the glycolysis, the pathway of the glycolysis is regulated, what are the various reactions, what are the different enzymes which are regulated at various checkpoints. So now we are heading towards the control and regulation of Krebs cycle. So how this particular Krebs cycle is controlled, what are the different checkpoints, what are the different steps where the regulation occurs. So as far as the Krebs cycle is concerned, like with the glycolysis, regulation of the tricarboxylic acid cycle occurs both at the level of entry of substrate into the cycle and as well as at the key reactions or the key intermediate. So as far as the Krebs cycle is concerned, like the glycolysis, यहाँ पे भी जो बात है रेगुलेशन की, रेगुलेशन यहाँ पे भी या तो एंट्री के वक्त जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होके एंटर होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलता है, तो वो पॉइंट ऑफ एंट्री वहां पे भी इसको रेगुलेट किया जाता है, और जो की इंटरमीडिएट्स हैं, की रिएक्शंस हैं, वहां पे भी इसकी रेगुलेशन होती है। और ये हमने पढ़ा था कि यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे जरूरी क्यों है रेगुलेशन होना, बिकॉज इफ देयर इज ए नो नीड ऑफ Krebs साइकिल, Krebs साइकिल के इंटरमीडिएट्स की जरूरत नहीं है, एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो इस पूरे के पूरे पाथवे को इनिशिएट करने की भी जरूरत नहीं है सेल के लिए, और सेल इसके ऊपर एनर्जी एक्सपेंड करे और फिर इसको इतना लंबा चौड़ा पाथवे जनरेट करे, पाथवे जो है वो कंप्लीट करे। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हिच एंटर्स द एसिटाइल कोएंजाइम इनटू द Krebs साइकिल, तो उस स्टेप को रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास बाकी स्टेप्स हैं within the cycle, there are 3 steps, they are also regulated. So fuel enters the tricarboxylic acid cycle primarily as acetyl coenzyme as glucose in the glycolysis is converted into the pyruvate. Now pyruvate oxidation occurs, we have studied it, and after the oxidation of the pyruvate, that particular pyruvate is converted to acetyl coenzyme A, and acetyl coenzyme A enters into the Krebs cycle and it combines with the oxaloacetate and the cycle starts. So fuel, what is the meaning of fuel here is the meaning of food, कि कौन से कार्बन के कंपाउंड जो है, कार्बन का फ्यूल क्या है, कार्बन का सोर्स क्या है, और वो हमारे पास क्या है, that is acetyl coenzyme A. So as far as the fuel or the food is concerned, it enters in the form of acetyl coenzyme A, and the generation of acetyl coenzyme A from carbohydrates. So what it means, we are talking about here in the 2 steps from the in the glycolysis, we are talking about the glycolysis as well as the oxidation of the pyruvate glucose in the or the carbohydrates in the glycolysis, and which form the pyruvate, and pyruvate will form acetyl coenzyme A, is therefore a major control point of the cycle. So as this particular step is the first step of the generation of the acetyl coenzyme A in the Krebs cycle, so this particular step is primarily regulated. If there is no need of Krebs cycle, then it will be stopped, it will be inhibited here at the first point. So as far as the inhibition is concerned, we have discussed it about this particular inhibition or feedback mechanism or end product inhibition it is also called. So this particular inhibition occurs at almost all the pathways. तो इस इनहिबिशन का मकसद क्या है, इस इनहिबिशन का मैकेनिज्म क्या है, कि जो भी चीज जो पाथवे क्रिएट होता है, जब पाथवे स्टार्ट होता है, तो हर एक पाथवे का कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट होता है। तो होता क्या है, जो उससे बेनिफिशियल चीजें आ रही होती है या उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, वही एंड प्रोडक्ट ही डिटरमिन करता है कि इस पाथवे को चलना है या इस पाथवे को रोकना है। प्लांट को या सेल को इस चीज का सेंस कैसे आता है कि अब इस पाथवे को उसने कंप्लीट करना है और अब इस पाथवे को उसने स्टॉप कर देना है। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो फीडबैक का मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल, वी हैव एनी pathway, here we have a metabolic pathway, any of the pathway which is occurring in the plant cell or in simply the cell. So here we have the first reaction and it will make a first intermediate. Here is the enzyme 1, enzyme 2, these are all the intermediate. Then there at the step 3 we have third enzyme and we have fourth enzyme, and after these all the reactions
we get a product which we call end product. तो इस हमारे पास जो सारे का सारा पाथवे है, इसका प्रोडक्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल जो क्या है वो एटीपी है। हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे पाथवे का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास यहाँ पे एटीपी है। अब इसका जो प्रोडक्ट है अगर वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है सेल के लिए और उसको एटीपी की जरूरत नहीं है, तो यही एटीपी जो है जो इसका प्रोडक्ट है, इट विल इनहिबिट द एंजाइम व्हिच इज स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर पाथवे। तो वो जो इसका प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट ही इनहिबिट करेगा इस पाथवे को इनिशिएट होने से, और मोस्टली जो सबसे पहला एंजाइम है जो इस पाथवे को स्टार्ट करता है उसी लेवल के ऊपर ही इसको स्टॉप कर दिया जाता है, इसको इनहिबिट कर दिया जाता है। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इनहिबिशन एंजाइम 1. So this is a feedback mechanism which is practiced in the Krebs cycle as well as it is seen in the glycolysis and many other pathways. और इनमें होता क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वही एंड प्रोडक्ट ही बताता है कि आया कि इस साइकिल ने, फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे केस में देख लेते हैं कि हम सेल में एटीपी की बहुत कमी है और फॉर एग्जांपल सेल को 70 एटीपी या 80 या 100 एटीपी चाहिए और यहाँ पे एटीपी जो है वो सिर्फ 10 है या 12 है, तो चूंकि यहाँ एटीपी कम है तो एटीपी का जो अपोजिट हमारे पास एनर्जी है वो एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी क्योंकि कम है तो जितने एटीपी कम होंगे एडीपी जो है वो इतना ज्यादा होगा, क्योंकि एटीपी जब यूज होता है तो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। तो एटीपी और एडीपी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एटीपी होगा एडीपी की जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है वो कम होगी, और जितना ज्यादा एडीपी होगा उतना कम हमारे पास एटीपी होगा। दे आर इनवर्स रिलेशन। तो जब यहाँ पे हमारे पास एटीपी कम होगा तो हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड आएगा वो एडीपी, तो वो इसको क्या कर देगा, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा और इस पाथवे को जो है वो इनिशिएट कर देगा एंड वी विल गेट अ फाइनल प्रोडक्ट. So as far as the comparison is concerned, we are comparing the cells at two stages, the cell in a resting metabolic state and the cell in a highly metabolic state. And why we are discussing here, this is also linked to the regulation, this is also linked with the feedback regulation. Need and use comparatively little energy. So as in the resting stage and the resting metabolic stage, the use of the energy is comparatively low because plant or the cell is at resting state, it is not working in a the work is not at the higher level. तो एक नॉर्मल प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है, नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें सेल को एक नॉर्मली जो है नॉर्मल रूटीन में उसको फूड चाहिए. बट हियर इन ए सेल इन ए हाईली मेटाबॉलिक स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर हम नीड एंड यूज मोर एनर्जी देन रेस्टिंग स्टेज. अगर हम एग्जांपल डेली लाइफ देख लें, हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, व्हेन वी परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, जो भी हो, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो बाहर का काम हो, जिसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो ज्यादा यूज हो रही होती है. जो भी वर्क हम परफॉर्म करते हैं, चाहे हम यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ, चाहे हम आप लोग इस चीज को सुन रहे हैं, चाहे आप माइंड को यूज करके इस चीज को समझ रहे हैं, सो यू आर वर्किंग, यू आर नॉट एट अ मेटाबॉलिकली रेस्टिंग स्टेज. तो ये मेटाबॉलिक की जो स्टेजेस हैं ये डिफर करती हैं वर्क की कैपेसिटी के ऊपर के कितना वर्क आप, कितने इंटेंसिव वर्क आप कर रहे हैं. तो जितना ज्यादा इंटेंसिव वर्क होगा उतना ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. सिमिलर इज द केस विद द प्लांट सेल्स. उनमें जितना ज्यादा, उनमें कभी ऐसे जो टाइम आ जाता है जब उनको मेटाबॉलिक स्टेज को, मेटाबॉलिक रेट को तेज करना पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ ऐसी आ जाती हैं कि मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करना पड़ता है ताकि जल्दी से उस चीज को कंप्लीट किया जा सके और प्लांट के सर्वाइवल को जो है वो, प्लांट की लाइफ को जो है वो बचाया जा सके और प्लांट को सर्वाइव कर सके. तो सिमिलर इज द केस हियर विद दिस plant cells. So they when they are at the metabolically resting stage, they use a little energy, while when they are at metabolically highly metabolic state, they are working intensive work. Then there will be then they will need and use more energy as compared here they are using less energy. So when there is a plant is at the resting stage, so there will be a high ATP and low ADP level. So ATP to ADP ratio, it will be, we can say that there will be more energy present, more energy stored, more energy present at the disposal of the cell. Here is the low energy present. तो इसमें चूंकि प्लांट जो है या जो सेल है वो इतना ज्यादा इंटेंसिव वर्क नहीं कर रहा, वो नॉर्मल रेट के ऊपर है, तो उसके पास एनर्जी का जो जखीरा है वो ज्यादा है, एटीपी का जो जखीरा है वो ज्यादा है. जबकि जब मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज पे ऊपर होगा तो सेल जो है वो एटीपी को कॉन्स्टेंटली और वेरी रैपिड रेट के साथ यूज कर रहा होगा. सो इट विल हैव अ हाई एडीपी एंड लो एटीपी.
तो क्या होगा, यहाँ पे ATP और ADP के रेशियो जो है, सो दीज आर बोथ अपोजिट थिंग्स। जब सेल जो है वो नॉर्मल स्टेट के ऊपर है या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव, सो हियर वी हैव हाई NADH एंड लो NAD, because NADH are not used constantly, they are stored here, so there the concentration of NADH will be high. So here the NADH will be low and high NAD. So what will happen? So these are the products. So as far as the energy needs are concerned, these are the products. Either they are the ADP or ATP, NADH and NAD. So they all act as a feedback mechanism. So प्लांट इस चीज को सेंस कर लेता है कि किस चीज की मिकदार सेल में ज्यादा हो रही है। अगर ADP की मिकदार ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्लांट को एनर्जी चाहिए, तो वो फौरन जो है एनर्जी का पाथवे शुरू कर देगा और ATP की प्रोडक्शन शुरू कर देगा, जो प्लांट जो है या सेल जो है उसको यूज करेगा। या क्या है कि प्लांट जो है वो मेटाबॉलिकली रेस्टिंग स्टेज के ऊपर है, तो प्लांट को अब एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो प्लांट बजाय एनर्जी या सेल जो है वो बजाय एनर्जी प्रोड्यूस करने के, पाथवे स्टार्ट करने के, सो ड्यू टू हाई ATP वो क्या करेगा, एनर्जी के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, रेस्पिरेशन को स्टॉप कर देगा, और क्या होगा, देयर विल बी नो रेस्पिरेशन। सो हियर दीज आर द मॉलिक्यूल्स, दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ATP किसका प्रोडक्ट है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। NADH भी रेस्पिरेशन में बन रहा होता है। सो दीज ऑल आर द एंड प्रोडक्ट फीडबैक मैकेनिज्म। सो इन प्रोडक्ट की बेस के ऊपर ही इनको रेगुलेट किया जाता है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल है, चाहे वो बाकी के पाथवेज है जिनसे एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो यहाँ पे इस कंपैरिजन का मतलब ये है कि दीज ऑल प्रोडक्ट्स, सो दीज कंसंट्रेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डिटरमिन्स द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द सेल। उससे क्या होता है कि वो इस मेटाबॉलिक रेट को जो है वो बता रहे होते हैं कि अब रेस्पिरेशन ने स्टार्ट होना है या अब रेस्पिरेशन ने एंड होना है, या अब रेस्पिरेशन को इनहिबिट करना है, या उसका रेट कम होना है या उसका रेट हाई होना है। सो दीज all these things are determined by the products which we have discussed here. So as far as the Krebs cycle is concerned, Krebs cycle is controlled at 4 points, but 3 points are here within the cycle, and 1 point is where when the pyruvate enters into the cycle via the acetyl coenzyme A. तो हमारे पास टोटल जो है वो 4 चेक पॉइंट्स हैं. So here is the key. This cross sign is the control point. So these two equal signs, they are the inhibition of the reaction, and this here we have the red spot, steps requiring electron acceptor, either NAD or FAD. So these all are the processes where the regulation occurs. So first process is inhibited by ATP, acetyl coenzyme A, and NADH. So why here ATP acting as an inhibitor or NADH acting as an inhibitor? Because ATP is the end product of this all the lengthy process. क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद इस NADH और इन्होंने ये सारे कंपाउंड जो है वो फीड करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ATP बनाती है. अगर ATP जो है abundant में मौजूद है सेल में, so there is no need of production of ATP. So that's why ATP production is inhibited, and here ATP act as an inhibitor. और यहाँ पे जो एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काम कर रहा होता है वो इस जगह को, इस रिएक्शन को, इस पाथवे को, इस लिंक को, इस इंटरमीडिएट को जो है वो उस एंजाइम को एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर देता है. और चाहे वो NADH है, बिकॉज यहाँ पे NADH भी प्रोड्यूस होता है. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल. सो दैट्स व्हाई हमने अभी भी बात की थी कि एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन इसको कहा जाता है. और इसके बाद हमारे पास थर्ड जो कंपाउंड है वो एसिटाइल कोएंजाइम A का है. सो हियर एसिटाइल कोएंजाइम A की जहां तक बात है, एसिटाइल कोएंजाइम A सिर्फ पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से ही नहीं आता, लिपिड की जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है. इसी तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे पाथवेज हैं जिनमें एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो बन रहा होता है. सो इफ सेल हैज ए huge amount of acetyl coenzyme A, sufficient amount of acetyl coenzyme A, then there is no need of converting this particular pyruvate to acetyl coenzyme A. So what happens? This particular acetyl coenzyme A will inhibit allosterically this pathway. So again here we also have inhibited by ATP, NADH, succinyl coenzyme A, citrate synthase. So these are all the products of this particular reaction. We have again citrate, when isocitrate is converted to alpha ketoglutarate, it is also inhibited by ATP, NADH, stimulated by. So we are going to discuss all these reactions in detail as well. So here we have the reaction. So here ATP is the end product of this all the lengthy process. क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद इस NADH और इन्होंने ये सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे पाथवेज हैं जिनमें एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो बन रहा होता है. So if cell has a huge amount of acetyl coenzyme A,
at the fourth step we have this is particular is inhibited by ATP, NADH and succinyl coenzyme A. So we have seen that it is not surprising that the enzyme that initiate it is inhibited by ATP and NADH. तो जहाँ तक बात है रेगुलेशन की, तो हमने ये पहले भी बात की है कि these are the products. So ATP and NADH are the products. So it is not surprising as the product is not needed by the cell. So there is no need of ATP and NADH. So it is not surprising that these two inhibit this particular pathway. ATP और NADH जो है वो इनहिबिटर का जो है वो काम करते हैं और सारे के सारे साइकिल को इनहिबिट कर देते हैं. So because both compounds are abundant when a cell has a good deal of energy readily available. जब एनर्जी की जो कंसंट्रेशन है, एनर्जी की जो फॉर्म्स है, चाहे वो ATP है चाहे वो NADH है, वो सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है सेल के लिए. So then there is a no need of producing ATP and NADH. So that's why plant क्या करता है कि सबसे पहला जो स्टेप है उसी के ऊपर ही ATP और NADH इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं और वहां पे उसको इनहिबिट कर देते हैं. So the end product of a series of reaction inhibit the fifth reactions of the series and the intermediate reactions do not takes place. So this is the first reaction, then their products are not needed. So what happens? The end product of a series of reactions. So end product जो है उस series के reaction का जो भी है वो end product हमारे पास ATP है, NADH है या उस पाथवे का उसी रिएक्शन का प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए आल्सो एक्ट एज ए इनहिबिटर. सो एंड प्रोडक्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ रिएक्शन व्हाट इट डज, इट इनहिबिट्स द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द सीरीज. सो जब पहला रिएक्शन ही स्टॉप कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है, एंड द इंटरमीडिएट रिएक्शंस डू नॉट टेक्स प्लेस व्हेन देयर प्रोडक्ट्स आर नॉट नीडेड. So it is determined by the cell needs. So whether the regulation should occur. Regulation किस लेवल के ऊपर होनी है? या तो ये हमने पहले भी बहुत दफा बात की है कि इस प्रोडक्ट में, इस पाथवे में जरूरी नहीं है कि सिर्फ ATP और NADH जो है उसके प्रोडक्ट हैं. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड्स. इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं दे आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड्स. तो क्योंकि अगर इसके ATP और NADH की ठीक है जरूरत नहीं है लेकिन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस की जरूरत है, तो क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर इसको रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया जाएगा. जब ये रिएक्शन जो है, ये पाथवे जो है, जो 4-5 रिएक्शंस के बाद जब कुछ इंटरमीडिएट हासिल हो जाएंगे तो उस इंटरमीडिएट के बाद वहां पे रेगुलेट कर दिया जाएगा और उससे आगे जो है वो उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा. तो जो मकसद है वो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस है, तो वो इंटरमीडिएट से उसकी सिंथेसिस हो जाएगी और ATP और NADH जो है वो उससे प्रोड्यूस नहीं होंगे. So why there is a regulation at more than one point? There are various reasons. So one reason is that there is a not only the product ATP and NADH, but there are also intermediates which are also involved in various other pathways. Like, for example, TCA cycle is involved in the synthesis of amino acids. So where the regulation occur, it is determined by the condition of the cell.